Hello my friends, my name is Aniket and this is the part 4 of idiom and phrases। अगर आप इससे पहले पार्ट 3 नहीं देखे हैं और पार्ट 2 और पार्ट 1 तो जाके चैनल विजिट करें। हम डेली आपको 10 करवा रहे हैं वोकैब का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस फॉर एयरफोर्स सेक्शन वाई एंड नेवी SSR। द फर्स्ट वन इज़ द प्यून was at his wit end when the manager called him। They are the 4 option: alert, puzzle, afraid, irritate। तो जब प्यून को मैनेजर बुलाया तो at his wit end, the idiom of at his wit end means puzzle। The correct answer is B। The second one is he cannot make both ends meet। He cannot make both ends meet। Idiom and phrases of make both ends meet: 4 options: work hard, manage the business, earn enough, control affair। He cannot make both ends means earn enough। He cannot make both ends means earn enough। The third one is he burnt his finger by interfering in his neighbor's affair। They are the 4 options: got revoked, got him into trouble, burned himself, got him insulted। The correct answer is got him in trouble, option B। The fourth one is he will not allow you to play duck and ducks with my money। There are the 4 options: save, destroy, hurt and waste। So he will not allow to you to play duck and ducks means waste। Duck and ducks means waste, option D is correct। The fifth one is call it a day। Call it a day, idiom or phrases of call it a day। There are the 4 options: start working, it is my day, stop working on something, to ignore someone। तो call it a day means होता है stop working on something, means option B is correct। The sixth one is see eye to eye। There are the 4 options: someone is very easy, agree with someone, to make a situation worse, start reading। तो see eye to eye, जब आपका आँख एक दूसरे में मिल रहा है तो agree with someone। The correct answer is B। The seventh one is ball in your court। अगर बॉल आपके कोर्ट में तो there are the 4 options: when it is you to make the next decision, be very expensive, reduce stress and agree with nobody। तो ball in your court, correct answer is A। when it is up to you, make the next decision। अगर बॉल आपके हाथ में है तो आपको नेक्स्ट डिसीजन करना है। The eighth one is a house of card। A house of card means there are the 4 options: weak plan, a small plan, a poor plan या playing games। अगर आप कार्ड का हाउस बनाएंगे तो वो एक पुअर प्लान होगा। करेक्ट आंसर इज C, a poor plan। The ninth one is to beat the dust। To beat the dust, there are the 4 options: to be gifted, to be royal, amateur, foul smell। तो टू बीट द डस्ट मीन्स टू बी डिफ्टेड। अगर हम डस्ट को ही बीट करेंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा। टू बी डिफ्टेड, इडियम फ्रेजेस। द 10th वन इज पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट, दे आर द 4 ऑप्शंस: ट्राई हिज बेस्ट, डू नथिंग्स, वेरी रिच, सरप्राइज टू ऑल। तो पिलर टू पोस्ट होता है मीन्स ट्राई हिज बेस्ट। जितना आप कोई चीज़ में दे सकते हैं उतना अपना बेस्ट दीजिए, 100%। तो आते हैं सम रूट्स वर्ड्स की तरफ, जिसमें फर्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। दिस इज ऑल्सो इडियम फ्रेजेस, चाइल्ड प्ले। अगर खेल सकता है मीन्स वेरी इजी होगा, वो टास्क वेरी इजी होगा। केक वॉक, एक इडियम फ्रेज ये भी आता है केक वॉक भी होता है, जो चाइल्ड प्ले मीन्स बहुत आसानी तरह से खेला जाता है या वेरी इजी टास्क। द सेकेंड वन इज़ ए नट इन अ नट सेल। अगर आप नट सेल, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इन अ नट सेल। अगर नट सेल के अंदर है तो वो वेरी ब्रीफ है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, इन ब्रीफ। द थर्ड वन इज़ टू पुट इन द कॉर्नर।
टू पुट इन द कॉर्नर इज टू पनिश समवन। टीचर जब पनिश देते थे क्लासरूम में तो बोलते थे एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाए। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, टू पुट इन द कॉर्नर मीन्स टू पनिश। द फोर्थ वन इज पॉइजन समवन ईयर। अगर आप किसी के कान में पॉइजन्स, इसका अर्थ, इसका इडियम है पॉइजन समवन ईयर। इसका अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं, किसी के कान में आप पॉइजन देना मत। टू स्पीक अगेंस्ट समवन, आप किसी के खिलाफ भड़का रहे हैं उसको, टू स्पीक अगेंस्ट समवन। एंड द फिफ्थ वन इज टू हार्ड नट टू क्रैक। अगर हार्ड नट टू क्रैक मीन्स ए प्रॉब्लम विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। ए प्रॉब्लम विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व मीन्स ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट, कोई भी नट को आप मतलब आलमंड्स का नट जो होता है उसे क्रैक नहीं कर पाता है, मतलब क्या होता है, उससे आप ऐसा अर्थ लगा सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक मीन्स ए प्रॉब्लम विच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। एट लास्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।